आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਬਦਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਈਮੇਲ ਅਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਆ ਬੱਬਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मैं बेसिकली कंप्लेंट सी मैनू इत्थे डॉक्टर बब्बर है, गायनी दी डॉक्टर है, वो पेशेंट्स दे वल्लों मैनू फोन आए सी, एक भी नहीं 2 3 4 चौथी 4 पेशेंट्स दे फोन आए कि सिजेरियन इत्थे होया ते दूजे या तीजे दिन उन्होंने कहा गया कि इत्थे बहुत गंदगी है तो थोड़ा खराब हो जाएगा ऑपरेशन की, थोनू मैं उन्होंने अपनी कार च बिठाया ते हस्पताल लै गए। मैं आज सीधा हस्पताल गई सी, उत्थे पहला किसी बंदे नूं भेजिया, उन्हें कहा कि उत्थे मरीज़ हैगे। जदों तक मैं गई उदों तक उत्थे कोई मरीज़ नहीं सी, पर इत्थे आके देखिया तो मरीज़ां तो बाहरों दवाई मंगाई जा रही है, जदों कि साडियां स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि 2-4 दवाइयां जिहड़े कि साडे स्पैशलिस्ट डॉक्टर मनन भी ये दवाइयां नाल सरकारियां नाल ठीक नहीं हो रहे, फिर वो दवाई बाहरों लिख के दे सकते हैं। सिविल सर्जन नाल ही सीगे, उन्होंने अपने आप ही अखां नाल अपना हाल देख लिया। सो नैक्सट 15 डेज़ 15 दिनों बाद मेरा गेड़ा रहूगा, जिहदे विच आई थिंक मैं सवेर तो लैके शाम तक सारे मरीज़ों को भी पूछूंगी तो लेट्स सी की डिफरेंस आंदा है। इस हस्पताल दे विच तैनात डॉक्टरां ने खुद ते लग रहे इल्जामां नूं गलत दस्सिया। उन्हां ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਬੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਾਈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੌਪ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਆਈ ਨਵਜੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ ਨਾਲ ਕੌਮਿਤਾ ਮਿਨਹਾਸ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼।
देश ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ये आज हमारा लॉन्च हो रहा है प्राइम मिनिस्टर जी का जो प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका उद्घाटन हम इस कॉलेज से कर रहे हैं, एसटी कॉलेज गुरदासपुर। मैं अपने आप को इस बारे में बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिले में सबसे पहले मेरी संस्था को ही इस शुभ काम के लिए चुना गया, क्योंकि आज मैं समझती हूँ कि पूरे समाज की सोच को लकवा मार गया है। ये कैंसर जैसा महारोग है। एक समय था जब हम पशु पक्षियों से लेकर जड़ चेतन प्रकृति सभी की केयर करते थे, उनकी परवाह करते थे। आज हमने अपने ही समाज के 50% अंग को पीछे पछाड़कर छोड़ दिया है। इससे सारे समाज का संतुलन बिगड़ गया है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह हम अपनी मशीनरी के अलाइनमेंट के लिए झट वर्कशॉपों में दौड़ते हैं, हमको सबसे पहले अपने समाज की अलाइनमेंट करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी मुहिम है। इससे सच्ची बात है कि हमारे बच्चों को, बेटियों को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है। एक कॉन्फिडेंस आ रहा है लड़कियों के दिल में। ये नहीं होता कि ठीक है कुछ बोलते हैं मुहिम चली, आज यहाँ पे हुआ वहाँ पे हुआ, लोग बोल के चले गए। अगर कोई 50% बोलता है, 70% बोलता है, कुछ ना कुछ तो उसका असर होता ही है ना। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही 4 गिने चुने प्रॉब्लम है, खुद के क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं मोस्टली लोगों के। ये जो जितनी कॉलोनीज बसी हुई हैं इनके खुद के क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, सूरेज वगैरह के। प्रशासन ने या एमपी ने तो नहीं क्रिएट करे हैं या पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं क्रिएट करे हैं। तो ऐसे ये जो यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप पूरे देश में जाएँ तो कहीं उसके मुकाबले कुछ नहीं है। आप कहते हैं ये उधर तो पानी तक नहीं, लोगों कहते हैं बिजली जिस दिन आती है उस दिन नारियल फोड़ते हैं लोग। यहाँ पर 2 मिनट जाती है तो हाय तौबा होने लगती है। तो जो इंसान यहाँ बसा हुआ है वो कहता है मेरा बेटा भी इधर बस जाए, मेरा पोता भी इधर बस जाए। तो अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर तो निकल के देखो, बिहार यूपी से लोग निकल के मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ बहुत जगह चले गए ना, क्योंकि उनके अपने घरों में प्रॉब्लम थी। यहाँ से कोई निकलने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? ज़िंदगी बड़ी खुशहाल है भाई, बड़ी खुशहाल है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। मेरा कोई रोजगार नहीं है। अच्छा। और मैं परेशान हूँ, मतलब एक बच्चे मेरे कैसे पाल सकते हूँ? हाँ, घर वाला की देत होगी। हम काम कुछ नहीं किया उन्होंने, हम काम करा देंगे, हमारा ऑफिस आ जाएगा। होता नहीं है काम, वकील भी नहीं कर रहे। समस्या हमारे चंडीगढ़ की ये है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं है। जहाँ जाओ पैसे मांगते हैं, पैसा चाहिए, 30 लाख रुपया। रहने के लिए हमारे पास मकान नहीं है। चंडीगढ़ की मेन समस्या यही है। बच्चे जाते हैं जहाँ भी जाते हैं वापस आ जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। ना प्राइवेट में है ना सरकारी में, तो है ही नहीं, प्राइवेट में बिल्कुल नहीं है। तो से मिले थे, क्या इन्होंने ये बोला नौकरी तो कहीं भी नहीं है और ना अच्छा मकान का हम कुछ नहीं करते। कहते हैं हम भी तो घर ही जाते हैं, बाद में रिटायर होके घर ही जाना होता। अगर जिनके घर में भी ना जमीन होए वो कहाँ जाएंगे? सरकारी क्वार्टरों के समस्या का हल लेके गए कि देखिए हमारी सरकारी क्वार्टरों के भी रिपेयरिंग करानी है, वो भी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई।
उसके लिए भी गए थे। और बच्चे पढ़ लिख के डिग्री के, हम सरकारी बंदे को तनख्वाह कितने मिलती कि हम मकान ले सकते और बच्चे को पढ़ा सकते। किसी मजबूरी बस हम पढ़ाते हैं और उसके बाद से कोई हमारे बच्चे को नौकरी नहीं। आज हम किरण खेर से मिलने गए, उन्होंने बोले चंडीगढ़ के तो ऐसे हम बोलते हैं सरकारी नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के अपने घर जाने को नहीं चाहते, और सबके यही होता है कि हम चंडीगढ़ में आ गए तो चंडीगढ़ में रहे। तो ये बात उन्होंने गलत कही। चंडीगढ़ में तो सब कोई चाहता है कि हम स्मार्ट में रहे, लेकिन स्मार्ट क्या देखते, जब से जीते उन्होंने बम्बे में रहे और यहाँ पर क्या काम करते। अगर यहाँ रहेंगे तो किसी की समस्या सुनेंगे। जी हमारे यही समस्या है, सब बच्चों की रोजगार नहीं है, यही समस्या सबकी। सांसद कहते हाँ, हैं कि अब देखो M.Tech करा के बच्चे कोई कुछ करा के इतना हमने खर्चा लगा दिया। अब हमारी हिस्सत इतनी नहीं, अभी कहीं मकान ले लिया, हमें बच्चों पर सारा खर्च हो गया। एक आदमी कमा रहे 5 जना खाने वाले, बताओ आप भी बताओ, इतना खर्चा है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, कहाँ जाए बच्चे बताओ आप। जहाज़ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਟਰਕਿਸ਼ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਹੈ। ATS ਨਾਗਪੁਰ ਨੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੀ 150 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। यात्रियों के समान की तलाशी भी ली गई है। दस दे कि मई महीने में IGI एयरपोर्ट से रेडिएशन फैलन तो बाद एयरपोर्ट खाली करवाया गया सी। जिक्रयोग है कि 1 महीने के अंदर यह तीसरा मौका है जहाँ टर्किश एयरलाइनस के किसी जहाज़ में बंब की खबर मिलन तो बाद उसकी एमरजेंसी लैंडिंग कराई गई हो। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले ने सुप्रीम कोर्ट के विच दस्तक दी है। इस केस के नाल संबंधित कई गवाहां ते मुलजमां दीआं शक्की हालात विच हुई मौतां ते राजपाल राम नरेश यादव नूं हटाउण दी मंग नूं लैके दाखल कई पटीशनां ते सुनवाई 9 जुलाई नूं होवेगी। राज बोर्ड वालों भर्ती की गई ट्रेनी सब इंस्पैक्टर की मौत ने भी सियासी हलकियां विच हफड़ा दफड़ी मचा दी है। कांग्रेस ने 3 दिनों के तीजी मौत होने ते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान नूं बर्खास्त करके इस मामले की निरपक्ष जांच कराउण दी मंग की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केस की जांच CBI तो कराउण दी मंग नूं खारिज करदिआं कहा है कि विशेष जांच टीम चंगा काम कर रही है। कोई भी मृत्यु होती है वो दुखद है, त्रासदपूर्ण है, लेकिन जहां तक सागर की जिस मृत्यु की आप बात कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले संबंधी कई गवाहां ते मुलजमां दीआं शक्की हालात च होईआं मौतां ते वख-वख सियासी आगुआं दीआं प्रतिक्रियावां आ रहीआं ने। कल दिन भर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता के वरिष्ठ नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने देश को किस तरह झूठ बताया, आज उसका खुलासा हुआ है। कल दिन भर बताते रहे कि मुख्यमंत्री इस तरह का पत्र नहीं लिख सकता है। आज उन्होंने ऐसा पत्र कैसे लिख दिया? ये दबाव सिर्फ जनता का नहीं, ये दबाव सिर्फ पत्रकारों का नहीं, ये दबाव जो जुलाई 9 को कोर्ट में पेशी होने वाली थी उसका भी दबाव इस सरकार पे था। पर हम इस चिट्ठी से संतुष्ट नहीं हैं। तत्काल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जब तक इसकी पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती है मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, जो शिवराज जी कल कह रहे थे वही तो आज कहा है कि माननीय अदालत इसकी निगरानी में जांच कर रही है और अदालत को निर्णय करना है। तो सब लोग मांग कर रहे हैं, तो शिवराज जी ने भी कहा कि हम भी कह रहे हैं कोई भी जांच कराओ, और उन्होंने
अदालत को वो अनुरोध करेंगे कि वो सीबीआई की जांच करवाएं। कांग्रेस अदालत से बढ़कर नहीं है। जब अदालत संतुष्ट है और कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि हम शिवराज जी कुछ छिपा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि कल तक माननीय राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि सीबीआई की जांच की कोई आवश्यकता नहीं, शिवराज सिंह जी कह रहे थे कोई जांच की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज सद्बुद्धि उनको मिली है। शायद मोहन भागवत जी का डंडा पड़ा हो उनको, या नरेंद्र मोदी जी का डंडा पड़ा हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब सीबीआई की जांच अगर होती है तो जो हमारी मांग है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त एसआईटी के माध्यम से होना चाहिए। प्रत्येक हफ्ते उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, पब्लिक हियरिंग होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको रफा दफा कर रही है, जिस तरह से कल भी 2 लोगों की मृत्यु और हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, जो भी है, देखिए स्पष्ट इसमें संकेत है कि ये बहुत सारी अननेचुरल, अप्राकृतिक मृत्यु हो रही हैं और इन मृत्यु में ज्यादातर नौजवान जा रहे हैं और वो जा रहे हैं जो या तो गवाह बनने वाले थे या जो इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए थे। ये बहुत ही गहरा साजिश चल रही है वहाँ पर। और जब उमा भारती जी ने स्वयं कह दिया कि उन्हें अपने साथियों की जीवन के लिए खतरा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री शांत हैं, चुप हैं। उनकी चुप्पी से ऐसा लगता है कि उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारें हों, उनके मंत्री हों, कोई हो, वो सब भ्रष्टाचार को और अपराध को अपना संरक्षण देने को तैयार हैं। बस एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो ये है कि आप आरएसएस की या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में आज मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से बदनाम हुई है, जिस तरह मौतें हुई हैं, जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं बराबर, उसको देखते हुए ये मामला बहुत ही सीरियस हो चुका है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जितना एक दबाव था, उसके साथ साथ 9 तारीख को जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, उससे घबरा करके भी शिवराज सिंह चौहान ने ये कदम उठाया है, चूँकि उन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट इसका बहुत सीरियस संज्ञान लेने वाली है। ऐसा हम मानते हैं और हमारा ख्याल है कि ऐसा होगा। इसलिए इससे पहले कि वो कहें, इन्होंने खुद ही इस मामले में पहल कर दी। पंचकुला ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ MSG2 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उसने अदालत विच एक अर्जी दायर करके 24 जुलाई तक विदेश विच रहन दी इजाजत मंगी सी। उसकी अर्जी का सीबीआई के वकील HPS वर्मा ने विरोध करदਿਆਂ कहा कि डेरा मुखी खिलाफ जबर जनाह और कतल के मामले आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं और वो मामले को लटकाउण के लिए चालां खेड रहा है। इस तो पहला अदालत ने डेरा मुखी को अपनी फिल्म के प्रचार लिए 7 जून तो 3 जुलाई तक विदेश जाने की इजाजत दी सी। हुण रणजीत सिंह और रामचंद्र छत्रपति कतल केसां की सुनवाई 18 जुलाई को होगी, जबकि जबर जनाह मामले की मुड़ सुनवाई 12 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पुलिस से एक औरत को पुलिस स्टेशन के जिंदा साड़न का दोष लग्या है। दिल दहला देने वाली घटना बाराबंकी के कोठी केसरगंज पुलिस स्टेशन की है। दोष है कि पुलिस स्टेशन के इस औरत को जिंदा साड़न तो पहला पुलिस स्टेशन के मुखी राय साहब यादव और मुंशी अखिलेश राय वालों औरत का बलात्कार करने की भी कोशिश की गई सी। पुलिस ने इस औरत को पैट्रोल पा के जिंदा साड़ दिता। यह पीड़ित औरत आंगनवाड़ी वर्कर सी। दस्सिया जा रहा है कि इस पुलिस स्टेशन का मुंशी उसके नाल अक्सर छेड़खानी करता सी। पुलिस ने उसके पति को एक झूठे केस में फसा के गिरफ्तार किया मामले विचों कढ़न के लिए 1 लाख रुपए की मांग की सी। यह औरत जब कुछ पैसे लैके पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसके नाल बलात्कार की कोशिश की गई। मामले की गंभीरता को देखदਿਆਂ फिलहाल थाना मुखी और मुंशी को सस्पेंड कर दिता गया। मिट्टी के तेल से जली है। अच्छा, कहाँ से आई ये महिला?
ये लाए हैं इनको पुलिस वाले, पता क्या है? गाहा बसंत गाँव कोठी थाने से लाए हैं। 100%? हाँ, करीब 100%। क्या कंडीशन इसमें? कंडीशन बहुत सीरियस है, तो आगे देखिए क्या हो रहा है। कल वहाँ 302 कर दिया गया, हम कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद जब यहाँ आए नीचे हमको लेकर, ये सब लोग छत पर थे, तब जो कुछ उनसे कहा सुनी हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है कल आइए, तब इनको हम छोड़ेंगे, हम लेते जा रहे हैं। आगे कुछ बताया भी नहीं। लोगों ने रेफर कर दिया है, हम लोग लखनऊ इनको ले जा रहे हैं। पहले प्राथमिक उद्देश्य मेरा ये है कि इनके जीवन की रक्षा हो। कैसे हुआ ये घटना, कैसे हुई है? इसके विषय में मैं डिटेल नहीं जानता हूँ, मैं चूँकि मेरा क्षेत्र दूसरा है। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में मुझे सूचना मिली थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। कल थाने में आग लगा दी गई थी, जिला अस्पताल लाया गया, वहाँ से रेफर कर दिया गया यहाँ। रात भर इलाज चला, लेकिन आज 4:45 बजे उनकी मौत हो गई। हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं, जो बयान हमारी माता जी ने वो मजिस्ट्रेट को दिए हैं बाराबंकी में, वो लोग गिरफ्तार किए जाएं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ भैया, जाते थे तभी परेशान करते थे। बलकपुरा मोड़ पर एक बार राय साहब यादव, अखिलेश राव, दोनों लोग हमको पकड़ लिया, लेकिन वो हम चिल्लाए पर कोई वहाँ था नहीं। हाँ, बेइज्जती करना चाह रहे थे। जी हाँ, जिनको फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो ऐसे आदमियों को। आप मुख्यमंत्री से मांग करती हैं? जी, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। हमको मुख्यमंत्री के सामने आप ले चलिए, हम चलेंगे, बयान देंगे साहब से। इस मामले ते ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी आगुआं ने भी अपना प्रतिक्रिया दिता है। बहुत ही दुखद घटना है, और खासकर क्योंकि जो पीड़िता थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी संवेदनाएं हैं उनके परिवारजनों के साथ, और ये और भी दुखद इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जब अच्छा काम कर रही है, तब कुछ अफसर अपने गलत कृत्यों से पुलिस फोर्स को खराब नाम देते हैं। पुलिस का काम जनता की सुरक्षा करना है, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वही कानून अपने हाथ में लेते हैं और कानून तोड़ते हैं। मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, एफआईआर रजिस्टर हुई है, दोनों पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, और जो पीड़िता थी उसका डाइंग डिक्लेरेशन भी रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल, ये दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में सामने आई है जो एक ही तरीके की वारदात हुई है, और ये ऐसी घटनाएं हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जहां पुलिस प्रशासन जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए। चाहे वो शाहजहांपुर जिले की जोगेंद्र की हत्या हुई हो वो, या ये बाराबंकी में कल ही जो खबर आई है। बिल्कुल गुंडा राज। सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम लोग, न्याय की मांग करते हैं। उनके परिवार भटक रहे हैं, दोनों, चाहे शाहजहांपुर हो या बाराबंकी हो, कि उनको न्याय नहीं मिला है, मामला दबाए जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो भी हों, जो भी इसमें सच हो उसको सामने आना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे पुलिस में, शासन में। देखिए, कुछ पिछले 6-7 सप्ताह में दूसरा केस है, और जिसमें कि पुलिस थाने में इस महिला को जलाया गया, और उससे पहले एक पत्रकार के घर जाके पुलिस कर्मियों के समक्ष एक व्यक्ति मरा, जिसने कि पत्रकार ने मरते मरते बयान दिया कि पुलिस वालों ने उस पर तेल डालकर आग लगाई। अब अगर ये हिंसा पुलिस के दायरे में आएगी, अगर हिंसा पुलिस के माथे आएगी और इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, तो ये तो बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज से न्यायिक जांच करानी चाहिए, ताकि लोगों के मन में विश्वास हो। इस समय कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र पर और शासन प्रशासन की ओर लोगों की आस्था और विश्वास कम हुआ है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 44 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ DNA ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ले जा चुके ने। परिवार के लोग ये मनण नूं तैयार नहीं कि जो बॉडी हस्पताल वालों उन्होंने मिली
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨਵਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰਿਪੋर्ट के आधार पर अगे की कार्रवाई की गल कही है। नहीं, उसमें जी डीएनए टेस्ट था जी, वो कंप्लीट हो गया कल, और जो उनका दोनों का हस्बैंड और वाइफ का जो बच्चे बेबी के थे, बाकी हम रिपोर्ट आनी है जी। बाकी जो जब तक जैसी रिपोर्ट आ जाएगी उसमें हमें जो मेन कंटेंशियस इशू है कि टाइम ऑफ डेथ है वो है, जो वो उसे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तो उसके बेसिस पे हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, तो उसके बेसिस हम कार्रवाई कर देंगे अगर बनती हुई तो। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी वालों चलान कट्टन तो खफा हुए एक नौजवान वालों कर्मचारी की कुटमार करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले के दोषी खिलाफ मामला दर्ज करके उसनू गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सैक्टर 31 और 32 दी लाइटां ते पुलिस कर्मचारी ने गौरव नाम के नौजवान नू लाइट जंप करने के दोष विच रोकिया सी। पुलिस कर्मचारी ने गौरव का लाइट जंप करने का 300 रुपए का चलान कट्टिया सी। चलान कट्टन तो खफा नौजवान पुलिस कर्मचारी के नाल झगड़ा करन लगा, जिससे पुलिस कर्मचारी ते सरकारी कामकाज विच रुकावट पाउण अते पुलिस मुलाजम के नाल माड़ा सलूक करन ते 1000 रुपए का होर जुर्माना लगा दिता। उस वेले का दोषी मौके तो चला गया, पर अगले दिन आके उसने पुलिस कर्मचारी के नाल झगड़ा करना शुरू कर दिता ते उसकी वर्दी तक फाड़ दी, जिस तो बाद पुलिस ने उसनू गिरफ्तार कर लिया। ये 4 तारीख को शाम को लगभग 7:20-25 के ऊपर मैंने चलान किया था इसका। उस दिन भी इसने बड़ी बदतमीजी करी थी और उस दिन भी ये हाथापाई की तक नौबत आ गई थी। तो उस दिन हमने पीसीआर को कॉल करी थी। पीसीआर ने मौके के ऊपर आकर हमारे को लाइसेंस दिवाया। उसके दौरान हमने इसका रेड लाइट प्लस मिसबिहेव का चलान कर दिया था। आज यहाँ हमारा इस आयरन मार्केट चौक पर नाका लगा हुआ था, तो उस दौरान ये पता ना किस साइड से आकर मेरे को कहने लगा, सर जी आपने मेरे साथ उस दिन गलत किया, आप मेरे को 300 रुपये दो, मेरे से इतना बड़ा चलान नहीं भरा जाएगा, मैं इसमें कुछ एडजस्ट करूँगा। मैंने कहा भाई आप मेरे को पहले ड्यूटी पे हूँ, मैं नाका लगा हुआ है, सरकारी ड्यूटी करने दे, बाद में मैं आपसे बात करूँगा। ये मेरे को सरकारी ड्यूटी में बार बार बाधा डाल रहा था। तो मैंने कॉल करके अपने इंस्पेक्टर साहब को बताया, उन्होंने अपनी कैमरे वाला बंदा भेजा और उसके बाद मैं इधर नाका ख़त्म होने का टाइम हुआ था, इंस्पेक्टर के पास आ गया तो वो बंदा मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं खड़ा था, उसने एकदम से मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा और मेरे को नीचे गिरा दिया, जिसमें मेरी नेम प्लेट और मेरा वायरलेस सेट नीचे गिर गया था। देखिए बुलेटिन में फिलहाल ये इन्ना ही, इजाजत दिओ, धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।